Unfathomable are the ways of the Creator. Synonymous with the belief of all religions, the light of consciousness descends on mortal earth, taking a magnanimous physical form, and thus unfolds the story of the God who descended on earth and walked among us mere mortal beings, preaching one universal truth, that is, humanism. इस सोई हुई दुनिया को जगाने के लिए कभी कभी प्रकृति अपने पावन संतान को इस धरती पर अवतरित करती है। यह गुरु, मसीहा, कुतुब या परफेक्ट मास्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। विश्व के समस्त जड़ एवं जीवंत जगत के क्रम विकास की तमाम दृश्य और अदृश्य गतिविधियां युग युगांतर से इन्हीं गुरुओं द्वारा एक योजनाबद्ध रूप से संचालित होती हैं। ऐसे सत्पुरुष बड़े प्यार से दूसरों के हृदय का द्वार खटखटाते हैं और कहते हैं, जागो। अक्सर ये देखा गया है कि दुनिया में हर कोई अपने आप को जागा हुआ समझता है, लेकिन इन महापुरुषों की वाणी को सुनने के बाद ही एहसास होने लगता है कि जागने का सही अर्थ क्या है। यह कहा जाता है कि सद्गुरु अमृत कलश के समान होते हैं। उनके हृदय में ईश्वर और वाणी में सरस्वती का वास है। वास्तव में गुरुओं द्वारा रचित पुस्तकें उस अमृत कलश से छलकती हुई बूंदों की तरह हैं, जिन्हें चखकर भक्त भाव विभोर हो जाता है। The Satguru or the perfect master or the Kutub or the adept, as he is differently called, is the pivotal point in the administration of the perceptible and the imperceptible universe around us. Besides the Sadgurus, nobody else has attained the state of Purna Brahma. This is so because only the Sadgurus have achieved the state of Sat Chit Anand. The subtle power of the Sadguru works in so many ways that it is difficult to explain them all in detail. In short, a Sadguru plays his divine role at different points of time in the life of a devotee. In the ultimate analysis, it has been found that it is the Guru who attracts the disciple towards him. Who else but a devotee can understand and experience this? I distinctly remember how Shirdi Sai Baba came into my life, and as time flew by, took over my life. And at one point, Baba had usurped all my waking and sleeping state. And I wake up suddenly from sleep or wakefulness. I do not know. There he was. His compassion unfathomable, standing before me. In tattered clothes and an unkempt beard, with words that surpassed a melodious symphony. Was I dreaming? I do not know. Then his glory in bright, resplendent glow engulfed me. His voice of divine ecstasy beholded me. Child, I am your master. I am in you. You come from me. You came for me. That is your destiny. Awake and see. The early morning breeze suddenly entered my room. His sweetened words entered my being. At that moment, I woke up to know that forever I belong to him. It had been a strange feeling, whatever I thought. Whatever I did on a purely mundane or mental plane, his thoughts would appear quietly in the background of my mind. He would appear sitting on a stone with his right leg over his left, looking upwards with his glory in that tattered coffany that he always donned.
his white headgear would be shining bright in his splendor. This thought, this striking image never left me. How much I ever tried, how much I ever struggled with it, this very image wouldn't leave my consciousness. I would feel restless like a fish in a fisherman's net. There was an incessant conflict with me. I was overcome with this dilemma. Everywhere I went, every situation I was in, this photograph of Sri Sainath always found me, as a locket on someone's neck, a ring on someone's finger. I tried my best to resist, but all efforts in vain. My attempts to consciously swim against this time flow of a mighty force beyond comprehension had failed. 28 years have passed, immersed in his devotion, and his grace devolved upon me in most unexpected ways. Today I stand here, stunned as I recollect the journey ever since. In the present, I stand looking back at a past whose achievements amaze me, and looking forwards to a future whose promises contain me. Basking in his glory, blessed by his touch, I move on with an aim, a vision, the fruits of which his devotee shall bear, and I am but a mere servant. मुझे याद है वो दिन जब पहली बार श्री जगन्नाथ दास द्वारा रचित उड़िया भागवत की कुछ पंक्तियां मेरे गुरुवर के कानों में पहली बार पड़ी थी। तब भागवत की इन पंक्तियों ने मेरे गुरुवर को पहली बार आकर्षित किया और उन्हें रात भर जगाए रखा। मुझे याद है वो पवित्र क्षण जब गुरुवर ने कलम उठाई और एक अमृत संतान की तरह कागज पर अपनी भावनाओं की स्याही से मुझे अविरत रचने लग गए। फिर क्या था, एक अनवरत प्रवाह की तरह मैं उनके मानस पट से निरंतर बहने लग गई और इसी तरह दिन महीनों में, महीने सालों में बदलने लग गए और न जाने कब एक नवजात शिशु से मैं किशोर अवस्था की ओर बढ़ने लग गई और अब मैं 20,000 पंक्तियों का एक पूर्ण कलश बन चुकी हूँ। वास्तव में मनुष्य का जीवन 5 चरणों से गुजरता है, जैसे कि शिशु अवस्था से किशोर अवस्था, उसके उपरांत युवा, फिर प्रौढ़ावस्था और अंत में वृद्धावस्था में गति करता है। ठीक उसी तरह मेरा विकास इन 5 पड़ावों से होकर निखरा है और अब मैं 5 पूर्ण संकलन के रूप में भक्तों के हृदय कोश में निवास करती हूँ। वास्तव में ज्ञान और भक्ति किसी भाषा में सीमित नहीं होते हैं। मैं भी समय के साथ साथ अपने प्रांत उड़ीसा से ऊपर उठकर देश विदेशों की विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित होने लगी और अब मैं केवल उड़िया भाषा में सीमित नहीं हूँ। देश विदेशों की अनेकों भाषाओं में मेरा रूपांतरण हो चुका है। वास्तव में यही मेरा विराट रूप है। मेरे बारे में ऐसा कहा जाता है कि मैं एक दर्पण के सदृश हूँ, जिसमें विभिन्न स्तरों के ज्ञानी भक्त अपनी सत्ता को मुझ में देखते हैं और अपने अपने बिंदुओं से मेरा हाथ पकड़कर अथाह सागर से मिलने चल देते हैं। श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव। चरणा दातार ध्यान तेरा होवे मन एकागर मेरा। श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव। ऐसा कहा गया है कि भाव से भक्ति, भक्ति से गीत और गीत से संगीत। एक भक्त का उद्गार
राग रागणियों के छंद से गुंजरित होकर वसंत ऋतु की कोयल की तरह आनंदमय वातावरण की सृष्टि करता है। जब भावना पवित्र होती है तब उसका रूपांतर एक छंदमय ताल की तरह भक्ति के आकाश में गूंज उठता है। जब मेरे गुरुवर की भावनाओं की तुलिका से भक्ति का चित्रपट रंगा गया था, तब पहली बार गीत साईं के लिए के रूप में मेरा जन्म हुआ। फिर भावनाओं की तुलिका निरंतर नए नए भाव चित्र रचती ही गई और भावनाओं के यह रंग श्री साईं के लिए गीत नैवेद्य, गीत पंखुड़ियां, भाव तरंग और समर्पण के रूप में रंजे हुए हैं। और फिर इन नया भाव पुष्पों ने साई शरण में और श्री साई सुमिरन में रूपी गुलदस्तों का रूप धारण कर लिया। अब भक्तों का हृदय भंवरा बनकर इन गुलदस्तों के चारों ओर मंडराने लग गया। फूल और भंवरे के अटूट संबंध की तरह वास्तविक रूप में सद्गुरु और उनके भक्तों का यह भाव संबंध भी खिल उठा और भक्त गुरु के भावों में रंगकर गा उठे। रात भर के लिए ही सही, बस तेरे ही चरणों में खिलने दे। अक्सर यह देखा गया है कि ज्ञान और भक्ति के अथाह सागर में छटपटाते हुए मनुष्य को किनारे की तलाश रहती है। भक्त अपने हृदय में सद्गुरु को बैठा तो लेता है, परंतु छोटी बड़ी कई समस्याओं और प्रश्नों की उलझन में बंधा रहता है। तब भक्तों के प्रश्नों का समाधान करते हुए करुणामय गुरु फिर कलम उठाते हैं और सरल भक्तों के लिए सरल समाधान प्रश्नोत्तरी के माध्यम से रचते हैं। यही असल में गुरु प्रसाद है, जिसको पाकर भक्त धन्य हो जाता है और उसे सही मार्गदर्शन मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आध्यात्मिक यात्रा में एक सच्चा गुरु केवल अपने ही नहीं, अन्य सद्गुरुओं के अस्तित्व को भी उतना ही महत्व देता है, क्योंकि उसकी नजर में सारे सद्गुरु एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न व्यक्तित्व ही तो हैं। May I answer 1 and 2, Baba the Devotee's Questions और शिरडी साईं बाबा एंड अदर परफेक्ट मास्टर्स। यह पुस्तकें इसी भावधारा का प्रतिफलन ही तो हैं। गुरु की वाणी अकाल पुरुष की वाणी होती है। ईश्वर गुरु के श्री मुख से अपना अमृत बरसाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण द एज ऑफ शिरडी साईं है। श्री गुरु के संदेश एक मरहम की तरह भक्तों के हृदय की जिज्ञासा के लिए शीतल मरहम का काम करते हैं और सद्गुरु की वास्तविक महिमा को दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं ज्ञान मार्ग की। ज्ञान मार्ग के सर्वोत्तम सोपान को छूना, ये एक ऐसी अवस्था थी जहां पर मैंने अपने आप को भक्ति मार्ग से निकालकर ज्ञान मार्ग की उस अवस्था में पाया जहां कुछ भी अगोप्य अगोचर नहीं था। सारे विश्व ब्रह्मांड की रचना एक स्फटिक की भांति मुझे आर पार नजर आ रही थी और उस परम भावना को गति देने के लिए गंगोत्री की तरह परम पुरुष की जटा से मैं स्वच्छ और पावन रूप में बहने लगा। हर युग में युग पुरुष अपने समस्त अनुभवों और अनुभूतियों के किसी न किसी माध्यम के रूप में सृष्टि के कल्याण के लिए कुछ न कुछ छोड़ जाते हैं। उनके पूरे व्यक्तित्व और विचार समष्टिगत रूप से उसी माध्यम से लोकार्पित होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण को हम भागवत गीता में पाते हैं, गुरु नानक देव जी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, ईसा मसीह को पवित्र बाइबल में, ठीक उसी तरह हमारे गुरुवर गुरु भागवत और गोप्यरु अगोप्या में साक्षात विद्यमान हैं।
उन्हें जानने के लिए, पाने के लिए इन पुस्तकों का मंथन करना अनिवार्य है। गुरु भागवत और गोप्यरु अगोप्य भक्ति और ज्ञान मार्ग की गंगा और यमुना है, जो कि सतगुरु के पवित्र चरणों से निकलती हैं और साईं भक्तों के हृदय में वास करती हैं। जैसे कि कभी श्री साईनाथ महाराज के चरणों से दास गणों के लिए गंगा की पवित्र जलधारा का प्रवाह हुआ था। They say the journey of a Satguru never ends. It goes on till eternity. And during this journey, he spills pearls of wisdom, love, compassion, sacrifice, and devotion for the sake of humanity. He sees the entire universe in him and him in the entire universe. He burns out like a candle for the sake of humanity and enlightenment of mankind. The madness of the heart is the height of wisdom. The confusion of love is beyond logic's comprehension. Can an ocean be contained in a small jar? Can the master be God? Can a man be Lord? They say it is imagination. Let them say so. जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते